Monica from Plotch team. Today we have a webinar on creating Facebook ads. This is a part of Plotch e-commerce webinar series. Today is the first part of 4-session series on digital marketing tutorials. We hope you like it and learn a lot of things from it, and you can implement the same in your own Facebook account and Facebook ads. Our today's speaker is Manoj Gupta, who is CEO of Craftsvilla.com. He brings on the table 10 years of e-commerce experience along with Facebook ads experience. Join me in welcoming Mr. Manoj Gupta. I'll pass on the mic to him. Thank you. Good morning, everyone. This is Manoj here. Basically, today's webinar is all about Facebook digital marketing. The background to this is of course online e-commerce. How is it becoming strong every day? How is it growing every day? So we thought, it's the right time to expose people, tell them how, they can do marketing. Especially Facebook, we also will do on Google also, but we thought we'll start with Facebook. Facebook is interesting, Facebook, as you know, almost all of us use. Facebook also has an ecosystem of WhatsApp and Instagram, which makes it a very powerful platform to market. Of course, we have other options to do digital marketing, not only paid but also unpaid. For example, SEO, referrals, influencer marketing. But we will cover all of those in stages. So today, basically, is all about Facebook. If you look at the Facebook ads, we thought we'll divide that into 4 sessions. First is basic introduction to Facebook ads. For example, what is Facebook? How do you open an account? How do you what are different structures in Facebook? Whether it's campaign, ad set, ads, kind of stuff. So pretty much a very high level overview of Facebook ads. In the second session, third session, and fourth session, we'll actually go deeper. And by the third session, we will actually create live campaigns and run them. At the end, measure performance, learn about how to measure the performance, how to use Facebook analytics to see how things are going. How to look at different campaign metrics. So very holistic approach to Facebook ads. I'm quite sure you all will like them a lot, like this session a lot. We will try to keep it very hands-on. We'll also want it to be interactive. So if you have any questions, which be question or anything you have, any doubt you have, you can ask in the Q&A part of the webinar. This session will be 45 minutes. I'll just tell you what it is, and then at the end 10-15 minutes we'll do Q&A, so you can ask the questions during that time. So if you look at why digital marketing, it's a question which has a simple answer. Why not digital marketing? Because everyone, if you look at the e-commerce is growing, online is growing. In the Corona times, we have realized that online is the one which is keeping a lot of things. It's keeping alive. So it's a future. Online is future. E-commerce is future. इसमें अभी से we should start getting deeper. If you start today,
you will not miss the tomorrow. So it's important that you understand what digital marketing is, how you grow your e-commerce business. There are few aspects of digital marketing, right? Why digital? Why not do other forms of marketing? अब डिजिटल में फायदा ये रहता है कि डिजिटल यू कैन डू टारगेटिंग. यू एक्चुअली कैन से कि मुझे इसको टारगेट करना है. आई वांट टू टारगेट दिस पर्सन, this type of interest, this gender, this geography. It's and sitting at home. You can, or an office. You can actually do everything sitting at home in office, right? So you can target, specifically whom you want to advertise to. Which is difficult in offline world. If you're doing TV, you can probably target I want to do on this channel, not on that channel, right? If you're doing hoardings, you can target I'll do in this city, not in that city. But specifically targeting across India, across the world, without really getting into specific very broad based offline marketing. You actually can do a lot of targeting here. The other two aspects are also important. Flexible budgets. अब आप टीवी पे करते हैं तो आपको बजट देना पड़ता है. You have to give a budget. Or radio पे you have to give a budget, right? And then they will say, okay, we will consume this budget, right? But then you cannot come tomorrow and say, no, I don't want to do that. Right? In digital, you can do that. Today you start with a budget, and you say tomorrow I actually don't want to continue this. You can stop it. Also, you can increase and decrease very quickly. You can say I want to start at 1,000 rupees. Tomorrow you can say I want to start at 5,000 rupees. और कल आपको लगता है कि 10,000 रुपये मुझे करना चाहिए या फिर दोबारा से 1,000 पे लाना चाहिए, right? So it gives you flexibility, which is not possible in non-digital marketing. And agile and scalable, right? You can do this campaign, that campaign. So agility is very agile is the word here. And scalable, right? Which basically means that you can actually scale your marketing very quickly or very seamlessly without really getting into the hurdles of कि मुझे एक होर्डिंग लगाना है तो दूसरा होर्डिंग कैसे लगाऊंगा, तीसरा होर्डिंग कैसे लगाऊंगा, या फिर एक रेडियो पे जाना है फिर दूसरे रेडियो पे जाना. So it's a lot of friction there, but here basically it's frictionless, seamless. So that's basically the important part about digital marketing. Why Facebook marketing in India, right? Why do you want to do Facebook marketing? Why not others? But Facebook, as I mentioned, Facebook is the leader. Numbers are here. 300 million, right? 30 crore, 30 crore people are on Facebook. 100 million, 10 crore people are on Insta. And 400 million, like 40 crore people are on WhatsApp. This is only India. Of course, globally, Facebook has billions of users. So basically, you cannot miss anyone. आप किसी को miss नहीं कर सकते Facebook marketing में. You can pretty much reach almost everyone. If not 100%, you can at least reach 60-70% of the people through Facebook. So that's why Facebook marketing. Now I'll tell you a little bit about Plotch. Of course, Plotch is still a work in progress, but it's an e-commerce ERP. It's an ERP. We have built it for small businesses. It's something that I would recommend you try. It has a lot of things: mobile app, web app, chatbots, WhatsApp, shopping. Lot of things you need for e-commerce is there. And also a lot of in the back end, let's say, if you're purchasing, purchase orders, warehouse management. If you have an offline store, point of sale. So it has a lot of things which are also non-e-commerce, but you need it for e-commerce. And also you may need it for your other businesses, like offline stores, this kind of stuff. So it's an interesting platform. I would recommend you try it. What are the prerequisites to Facebook marketing? अब आप Facebook marketing करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए पहले, right? Preparation. कोई आप
कोई आप रेसिपी बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन होती है, आपको केक बनाना है तो क्या 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 चाहिए आपको। तो ये बेसिकली प्रीरिक्विजिट्स हैं फेसबुक मार्केटिंग के, कि आपको एक you have to open a first personal Facebook account. You almost everyone has a personal Facebook account. हो सकता है आपको बिजनेस के लिए चाहिए तो आप बिजनेस के लिए अलग से पर्सनल फेसबुक अकाउंट बना लेंगे। एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू ओपन अ फेसबुक बिजनेस पेज, आपको एक बिजनेस पेज बनाना पड़ेगा। विदाउट दैट इट्स नॉट पॉसिबल टू डू एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक, तो आपको एक बिजनेस पेज बनाना ही पड़ेगा। आपके लिए भी अच्छा है, इट्स गुड फॉर यू बिकॉज you can do posts on the page, all those things. You can open an Insta account. Of course, an Insta account is not necessary, but it helps to, if you're doing Facebook, you can also get an option to advertise on Instagram automatically, right? So आपको Instagram पे आप टारगेटिंग भी कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं मुझे सिर्फ Instagram ही करना है। So you can. It's good to have an Instagram business account, and then you have to open a business manager account. अब ये थोड़ा डिफरेंट है। बिजनेस मैनेजर अकाउंट आपको इसलिए चाहिए होता है क्योंकि आप एक बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। बेसिकली आपका एक बिजनेस होगा, इसलिए आप पर्सनल है तो आपको ये नहीं चाहिए, पर आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं इसलिए आपको बिजनेस मैनेजर अकाउंट चाहिए। इसमें आपका बहुत कुछ होता है। आप एड अकाउंट्स आपके लिंक होते हैं, आपके पेजेस लिंक होते हैं, आपके इंस्टाग्राम लिंक होते हैं, आपका बेसिकली बिजनेस वेरीफाइड होता है। तो आप इससे आप बिजनेस वेरीफाइड रहेगा तो आपको व्हाट्सएप अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, एपीआई अकाउंट भी मिल सकता है। तो बहुत सारे फायदे हैं। बिजनेस मैनेजर अकाउंट इज नेसेसरी। वी विल ऑफ कोर्स लेट यू नो, show you how you create a business manager account. And then you will need to have Facebook app in developer account. You need to have integrate your FB SDK in app, put a Facebook pixel on website, upload product catalogs, and you would need a credit card because you will have to pay for these ads, right? So credit card की जरूरत पड़ती है। तो ये एक है जो आपके prerequisites हैं। There are other prerequisites, but these are the main ones which you would need to have to run a Facebook campaign and marketing on Facebook. Now, I will get into the structure of Facebook marketing. कि आप Facebook marketing करते हैं तो उसमें क्या क्या है अंदर, what is inside, which you will see, which you need to understand कि ये क्या है, so that you don't have confusion and you can seamlessly do it. So first of all you will get a concept of कि ad account, ये ad account, right? Now ad account क्या करता है? एक business manager account जो आपका होता है उसमें आप multiple ad accounts खोल सकते हैं, right? And why do you want to have multiple ad accounts? For example, if you have two companies, right? So one ad account will be for one company, another account for another company. Or if you have two different payment methods, right? Or if you have two different currencies. For example, if you are in Singapore, so you may have SGD currency, and if you're in India, you have INR currency. So you can also change the currency based on the of different ad accounts. Now, generally for most of the people, you only need one ad account. आपको एक ही ad account चाहिए, आपको multiple ad accounts नहीं create करनी चाहिए. But you have an option. You can actually create up to 20 ad accounts in Facebook. आप 20 ad account create कर सकते हैं before you are not allowed to create more ad accounts. पर कोई आप जैसे आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, आपके clients हैं, आप actually खुद के लिए नहीं यूज कर रहे, पर आप मल्टीपल बिजनेसेस के लिए आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है क्योंकि आप एक क्लाइंट के लिए एक ऐड अकाउंट खोलेंगे, दूसरे के लिए अनदर ऐड अकाउंट खोलेंगे, और हो सकता है एक का आप क्रेडिट कार्ड एक में डालेंगे, दूसरा क्रेडिट कार्ड आप दूसरे में डालेंगे। सो इसलिए वो ऐड अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है। आई विल शो यू हाउ वी the everything what I'm showing here on the slide, we will actually get into a actual Facebook account, and I'll show you there all these things.
फिर आप सॉरी कैंपेन में आ जाते हैं। अब आप ऐड अकाउंट में आप एक कैंपेन क्रिएट करते हैं। कैंपेन आप फिर यू नो क्या करता है कैंपेन, हाउ आई डू नीड डिफरेंट कैंपेन्स, राइट। आप कुछ कैंपेन होते हैं जो आप बोलेंगे कि मुझे ग्रोथ के लिए चाहिए, मुझे एक्चुअली बहुत सारे ऐप इंस्टॉल चाहिए, मुझे बहुत सारा ट्रैफिक चाहिए, राइट। कुछ आप बोलोगे कि मुझे एक्चुअली रीमार्केटिंग करना है, जो मेरे वेबसाइट पे आ गया है, जो मेरे वेब पे आ गया है, जो मेरे ऐप पे आ गया है, मैं उसी को मार्केटिंग करना चाहता हूँ, उसको बोलते हैं अपन रीमार्केटिंग। मैं एक्चुअली आई डोंट वांट टू रीमार्केट टू, आई डोंट वांट टू गो फॉर ग्रोथ। जो आ गए मेरे पास आ गए उन्हीं को मैं मार्केटिंग करना चाहता हूँ, तो वो रीमार्केटिंग होता है। तो उसके लिए आप का आपका ऑब्जेक्टिव है। अब एक है आपका, हो सकता है कि मुझे अवेयरनेस करनी है। अवेयरनेस का मतलब कि मेरा बैनर बहुत जगह दिखता रहे, एक जो भी आपका इमेज है या ब्रांड है, वो आपको बहुत जगह विजिबल होता है। आई डोंट केयर अबाउट वो मेरी वेबसाइट पे आए नहीं आए क्या है, बट आई वांट टू जस्ट मेक पीपल अवेयर। सो फ्लैश करेगा फेसबुक पे बहुत जगह है, सो उसको अवेयरनेस बोलते हैं। सो ऑल दीज डिफरेंट, हो सकता है कि, जैसे आपको ऑफलाइन स्टोर है, तो आपको ऑफलाइन स्टोर में विजिट्स कराने हैं, तो आप ऑफलाइन स्टोर का लोकेशन ऐड कर सकते हैं। एंड देन ऑफलाइन स्टोर के लोकेशन को ऐड करके आप उसके अराउंड जो भी लोग हैं उनको मार्केटिंग कर सकते हैं, ताकि आपके स्टोर पे लोग आए, राइट। या फिर आपका लीड जनरेशन, आपका कोई बिजनेस है जहाँ पे आपको चाहिए कि मुझे ये देखना है कि होलसेलर्स को आपको टारगेट करना है, या आपको इंश्योरेंस बिजनेस में है तो आपको प्रॉस्पेक्ट्स, आपके जो इंश्योरेंस लेने वाले उनको टारगेट करना है, तो आप एक फॉर्म देते हैं, फॉर्म में वो फिल करते हैं कि मुझे कांटेक्ट करो, ये मेरा नीड है, तो वो लीड जनरेशन, तो आप वो भी बोल सकते हैं। तो आप डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो कैंपेन का कॉन्सेप्ट ये होता है। आप फिर जाते हैं तो आपको एड सेट दिखता है, कैंपेन के बाद आपको एड सेट दिखेगा। अभी एड सेट क्या है, तो एड सेट्स आपको टारगेटिंग, जो मैं बोला था टारगेटिंग होता है कि आप टारगेट कर सकते हैं किसी को, वहां पे आप टारगेटिंग कर सकते हैं। So you can say, okay, I want to target Maharashtra, or I want to target Mumbai, right? Geography, you can target, or you can say, I want to only target female, or I only want to target male, or you can say, actually want to target 30 to 50 years people. I don't want to target above and below age, right? या फिर आप इंटरेस्ट बोल सकते हैं कि किसी को योगा में इंटरेस्ट है, या किसी को फूड में इंटरेस्ट है, तो उस इंटरेस्ट बेस पे आप टारगेट कर सकते हैं। नाउ ये कैटलॉग और ऑडियंसेस का कॉन्सेप्ट है। कैटलॉग ये होता है कि आप, अगर आपका वेबसाइट है तो आप एक कैटलॉग, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप अपलोड करते हैं, वो प्रोडक्ट्स आप फेसबुक को भी अपलोड करते हैं। तो जो जो प्रोडक्ट के साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा है और उसका फनल बन रहा है, उसके बेसिस पे आप कैटलॉग का भी टारगेटिंग कर सकते हैं कि मेरे प्रोडक्ट को किसने देखा है, उसी को दोबारा दोबारा नए प्रोडक्ट दिखाओ या वो प्रोडक्ट दिखाओ। तो कैटलॉग बेस्ड आप टारगेटिंग कर सकते हैं। ऑडियंसेस कर सकते हैं, ऑडियंसेस बना सकते हैं कि अगर आपके पास आपके रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, उनके फ़ोन नंबर है, तो आप उनको अपलोड करके आप एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। आप उन्हीं को टारगेट करोगे कि मेरे जो रजिस्टर्ड यूजर्स हैं जो फेसबुक पे हैं, उन्हीं को आप मेरा ऐड दिखाइए। तो आप ऐसे ऑडियंसेस भी आप क्रिएट कर सकते हैं। We will of course go detail into each of these later on. As I said कि there is a 4 session part. यहाँ पे हो सकता है बहुत कुछ आपको नया लग रहा हो, it's new, but by the end of the 4th session you will be, I guarantee you will be expert in all this. And then basically is ad, right? अब आपने देखा ad account, फिर आप कैंपेन में गए, फिर एड सेट में गए, फिर ऐड आ गया। अब ऐड क्या है, ऐड में आप एक्चुअल में क्या दिखा रहे हैं वहां पे आप बताते हैं कि आपको, मुझे एक्चुअली प्रोडक्ट्स देखना है। कराउजल, कराउजल होता है ना, आप स्वाइप करते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो आप एक कराउजल उसको बोलते हैं। तो कराउजल में दिखाना है कि मुझे एक इमेज दिखाना है, सिर्फ एक इमेज ही मेरा मुझे दिखाना है, या आपको एक वीडियो दिखाना है, फिर आपको एक टेक्स्ट
दिखाना है, फिर स्लाइड शो दिखाना है। और वहाँ पे आप ऐड में आप ट्रैकिंग भी बताते हैं कि मुझे ये ऐड ऐसे ऐसे ट्रैक करना है, राइट? क्योंकि ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअली उससे सेल कितना आया, उसका फायदा कितना हुआ। तो ट्रैकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैकिंग से आप रीमार्केटिंग भी करते हैं, राइट? कि अगर ये आया है तो इसको मैं बार बार दिखाऊंगा या फिर अपसेल करूंगा या क्रॉस सेल करूंगा, जो भी है। So basically, these are the four different parts that you will see. I am telling you these because these are important, right? If you look at, I think I have a image here which shows the actual may the whole how the layout is, right? So there is a business manager account, and in that you can create multiple ad accounts. In each ad account, you can create multiple campaigns. In each campaign, you can create multiple ad sets. And in each ad set, you can create multiple ads. So business manager account, फिर आपने ad account को separate कर लिया, हो सकता है आपकी दो कंपनी हो, उस पर कर लिया। फिर आपने ad account में campaigns को separate कर लिया, हो सकता है एक ऐप के लिए कर रहे हैं और एक वेब के लिए कर रहे हैं, राइट? फिर एड सेट आपने एक कैंपेन में, हो सकता है वेब पे आपको एक एड सेट में महाराष्ट्र को टारगेट करना है और एक एड सेट में आपको गुजरात को टारगेट करना है, राइट? फिर आपने एड सेट में आपने दो एड्स बनाए, एक में आप वीडियो दिखा रहे हैं और एक में आप इमेज दिखा रहे हैं, राइट? तो ऐसे आप मैनेज करते हैं। ये बेसिकली समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप ये स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी. इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ द फेसबुक मार्केटिंग actually works from a layout perspective, right? And you will not get confused. So ये है तो ये बेसिकली आपका स्ट्रक्चर था. अब ये फेसबुक का एड जब चलता है तो क्या होता है उधर, इसका आई थॉट आई विल जस्ट क्रिएट अ स्लाइड. This it's important to understand ki how the data flows, because Facebook pe performance, if you have to really get good performance, you have to understand how the tracking works, how do you look at analytics, how do you understand the performance metrics, right? So बहुत जरूरी है आपके लिए समझना. तो आपका एक ऐड दिख रहा है, राइट? फेसबुक पे आपको एक ऐड दिख रहा है, राइट? उस ऐड पे से लोग क्लिक करते हैं तो वो वेबसाइट या ऐप पे जाएगा, अनलेस आपने ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन चलाया हुआ है जिसमें कोई एक्शन शायद आप नहीं दे रहे हैं, बट सिर्फ वो फ्लैश कर रहा है. मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक ऐप और वेबसाइट पे जाएंगे उसको क्लिक करके. जब वो क्लिक होता है तो एक ट्रैकिंग जो होती है कि ऐप में आपका एक फेसबुक का एक SDK बोलते हैं अपन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, वो आपने डाला हुआ है तो उससे ट्रैकिंग होगी. या फिर वेबसाइट पे आप एक पिक्सल डालते हैं. In later sessions we'll understand how do you install a pixel, how do you generate a pixel and how do you install a pixel so that you can get into you can start tracking, right? उससे that goes into all that data, जो भी डेटा है कि मैं अगर एड से क्लिक करके एक वेबसाइट पे गया तो एक पिक्सल से आपको पता चलता है कि ये आया है, वो फेसबुक को वापस जाता है डेटा. फिर फेसबुक को पता लगता है अच्छा ये दिस पर्सन looked at this product and went to this website. So उस डेटा से फिर वो रीमार्केटिंग परफॉर्मेंस उसका इंजन चलता है, right? So it's important you understand that, and of course we'll go into detail in each of these later on. Now, as I said, it's a different steps to it, right? So first step is open a personal FB account, right? This is बहुत simple है, इसमें actually कुछ नहीं है. आप you can go into for example, I'll just show you here. Sorry, right. So if let's say I'll just log out here. तो आप facebook.com पे जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपका पर्सनल
हैप्पी अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा, राइट, क्रिएट न्यू अकाउंट। तो आप यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए, आपका ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, पासवर्ड डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के, योर जेंडर, एंड देन साइन अप. And once you sign up, you will land into this. I'll just log in here. Most of the time, क्या है कि people have a personal account, so ये जरूरत नहीं होगा. But still, I'm showing it because it's important that understand how to create a plot, right? Personal account, right? So इसमें बेसिकली ये आपका पर्सनल अकाउंट है. इस पे बेसिकली आप आपका सेटिंग जो भी है पर्सनल अकाउंट वो आप कर लीजिए. फिर यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे. जैसे मैंने यहाँ पे पेज ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और बिजनेस मैनेजर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो मुझे वो दिख रहा है. बट आप यहाँ से पेज क्रिएट कर सकते हैं. पेज क्रिएट करने के दो तरीके हैं. या तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट ए पेज, या फिर आप इस लिंक पे जा सकते हैं. जो ये लिंक है, जो स्टेप 2 है, ये ओपन है फेसबुक बिजनेस पेज. आप facebook.com/pages/create पे जाके आप फेसबुक का बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, पेज क्रिएट कर सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेज क्रिएट करें, क्योंकि ये इसके विदाउट आपका फेसबुक अलाउ नहीं करेगा एडवर्टाइज करने के लिए. तो यहाँ पर बेसिकली जब आप पेज क्रिएट करने जाते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कि कम्युनिटी और पब्लिक फिगर और बिजनेस और ब्रांड. मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल से बिजनेस और ब्रांड, एंड देन यू विल आप पेज का नाम देंगे. आप यहाँ पे कैटेगरी डालेंगे कि हो सकता है आप बोलेंगे कि शॉपिंग का मेरा शॉपिंग एंड रिटेल का है, तो मैं शॉपिंग एंड रिटेल कैटेगरी डाल दूंगा. आप यहाँ पे एड्रेस, आपका बिजनेस का एड्रेस वो सब डाल दीजिए और फिर आप कंटिन्यू कीजिए. तो जैसे अगर मैं यहाँ पे टेस्ट डाल के I can put whatever address I want. ये ऑप्शनल है, and then you can say continue. तो आपका एक पेज क्रिएट हो जाएगा, जो आप प्रोफाइल पिक्चर डाल दीजिए, फिर करके आपका एक पेज क्रिएट हो जाएगा. जो पेज जो मैंने यहाँ पे पेज पर जो बनाया हुआ है ऑलरेडी, वो आपको ऐसा दिखेगा. इस पेज पे आप पोस्ट कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं जो भी है. पर ये आप यहाँ पे कवर पेज डाल दीजिए. आप लाइव भी कर सकते हैं, फेसबुक लाइव आपका. सो इस पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव डन 2 स्टेप्स. एक स्टेप आपने किया, आपका पर्सनल फेसबुक अकाउंट बनाया. दूसरा स्टेप किया, आपने एक फेसबुक बिजनेस पेज बनाया, राइट. एंड द थर्ड स्टेप इज open a business manager account. Now this is important. Business manager account के लिए आप सिर्फ ये टाइप कीजिए business.facebook.com. तो वो आपको फिर ऑप्शन देगा टू क्रिएट बिजनेस. नाउ ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, इसलिए ये मुझे डायरेक्टली इधर लिंक करेगा. बट अगर आपको देखना है कि वो कैसे दिखेगा, तो मैं एक बार साइन आउट कर देता हूँ. तो आप business.facebook.com पे जाइए, राइट. और फिर वो आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा कि क्रिएट अकाउंट. उधर आप क्रिएट अकाउंट कर दीजिए. करके आप यहाँ पे लॉगिन कर देंगे तो आपको क्रिएट अकाउंट, इसे डिटेक्ट कर लिया है कि मेरा ऑलरेडी है, इसलिए बट यू कैन क्रिएट ए न्यू अकाउंट. तो बेसिकली एक बार बिजनेस बन जाएगा तो आपका ये दिखेगा आपको. इट विल बी लाइक दिस, राइट. You will have users, you will have accounts, you will have data sources, brand safety, registrations, integrations, payment, security center. So a lot of things are here. Each of them are important. Users में आपकी कंपनी के कुछ लोग हैं जिनको आपको एक्सेस देना है, कुछ तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं यूजर्स को. And then you can say एक बार मेरा लॉगिन करना पड़ेगा मुझे.
तो आप यहाँ से पीपल को, आपकी कोई कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं जिनको आपको एक्सेस देना है, तो आप यहाँ पे पीपल ऐड करके आप यहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस डाल दीजिए और उनको एक्सेस दे दीजिए कि आपको क्या एक्सेस चाहिए, एम्प्लॉय एक्सेस की, एडमिन एक्सेस चाहिए, राइट। वो आप देके उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर आपके पेजेस हैं, जो आपके वेब पेज है, जैसे आपने अभी पेज बनाया है, इसे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड नहीं किया है जो मैंने बनाया था, बट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उस पेज को। यहाँ पे आप फेसबुक का पेज नेम और यूआरएल दीजिए, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका पेज भी ऐड कर देगा। फिर यहाँ पे ऐड अकाउंट्स हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैंने बोला था, ऐड अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यू कैन क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट्स हियर, राइट। You can also, if you have already have an ad account, you can also request access to it or add that ad account here, right? So you can do that. फिर बहुत कुछ यहाँ पे, जैसे ऐप्स हैं, आपके फेसबुक के ऐप्स होंगे, इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे आप एक लाइन ऑफ बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। ये अभी आपके लिए ज़रूरत नहीं है, जैसे कैटलॉग में बोल रहा था, कैटलॉग अपलोड कर सकते हैं, पिक्सल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। शेयर्ड आपके ऑडियंसेस हैं वो मैनेज कर सकते हैं। फिर और भी बहुत कुछ, आपके पेमेंट्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड जो भी आपका है। तो यहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत, दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस एंड you create this, right? As part of the 3 steps to get to it. Open a FB account, personal FB, open a Facebook business page, and then open a business manager. So these after this you will be ready. You just have to then basically go here, sorry, just go here, go to add account and create a new ad account, right? And then once, so let me also show you how to create a new ad account. You can say, okay, I want to create an account which is around let's say food business, right? And I want to, जैसे मैंने बोला था, आप यहाँ पे करेंसी सेट कर सकते हैं। आपका अगर करेंसी डिफरेंट है, उस हिसाब से यहाँ पे करेंसी आप सेट कर सकते हैं, राइट। और फिर आप करके विल बी यूज फॉर माय बिजनेस। क्योंकि मैंने लॉगिन लॉग आउट किया तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया है, इसलिए वो बार बार मुझे कर रहा है, बट प्राइमरली दैट्स हाउ यू क्रिएट अ एड अकाउंट। फिर आप यहाँ जाके ओपन, जो भी ऐड अकाउंट है उसको क्लिक करके आप ओपन इन एड्स मैनेजर करेंगे, तो आप एक्चुअल जो फिर मैंने बोला था, आप ऐड अकाउंट के बाद आपका कैंपेन, एड सेट और ऐड है ना, वो आपको नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पे कैंपेन दिख रहा है, राइट, यहाँ पे एड सेट्स हैं और यहाँ पे एड्स हैं, और कैंपेन के अंदर एड सेट्स होते हैं, एड सेट्स के अंदर एड्स। तो जो मैंने बोला था उधर की जो स्ट्रक्चर है, उसका ये जो स्ट्रक्चर है मैंने यहाँ पे दिखाया था, वो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है, तो आपको ये स्ट्रक्चर समझने में डिफिकल्टी नहीं है। You understand this, what the structure is, right? Campaign, that's it. Now, as I said, campaign क्या होता है? Campaign जहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव देते हैं, जैसे जैसे आप शादी करते हैं, राइट? आप तो बोलते हैं मेरा एक शादी का कैंपेन क्रिएट करना है, तो मुझे एक ऑब्जेक्टिव है कि मुझे शादी करनी है, तो आप उस एनालॉजी से आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके यहाँ पे कि आपको शादी करनी है, तो आप बोल सकते हो कि मुझे रीच करना है, राइट? आई वांट टू मीट एज मेनी एज पीपल, राइट? और यू कैन से कि आई एक्चुअली वांट टू डू ए लीड जनरेशन फर्स्ट, तो उस हिसाब से यू कैन, इट गिव्स यू क्लियर ऑब्जेक्टिव कि आपको ब्रांड के लिए करना है, रीच के लिए करना है, ट्रैफिक के लिए, एंगेजमेंट क्या है, कि आपका पोस्ट जो हो रहा है, राइट,
आप जो फेसबुक पोस्ट कर रहे हैं उस पर ज़्यादा लोग क्लिक करें, कमेंट करें, शेयर करें, तो आप एंगेजमेंट क्लिक करेंगे, राइट। जैसे यहाँ पे उसने बोला है कि पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए आपको, पोस्ट पेज का लाइक चाहिए कि इवेंट के रेस्पॉन्सेस चाहिए, राइट। फिर आप बोल सकते हो नहीं मुझे एक्चुअली ऐप इंस्टॉल करना है, या फिर मुझे मेरे वीडियो के बहुत सारे व्यूज चाहिए मुझे, तो आप वीडियो व्यूज, तो जो भी आपका कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट से कैटलॉग सेल्स, बिकॉज बट फॉर दैट आई नीड टू क्रिएट अ कैटलॉग, वो अपन बाद में देखते हैं, we'll look at it later on. But abhi ke liye, let's say I just want to reach people, so I'll just say reach. Show your ads to maximum number of people, right? So it will just flash your ad to lot of people. तो आपने किया, तो आपको ये यहाँ पे इसे बताया कि कैंपेन, जैसे मैंने बोला था कैंपेन के अंदर एडसेट के अंदर न्यू एड, तो अभी आप एडसेट में आ गए। तो आपने कैंपेन में आपने ऑब्जेक्टिव डाल दिया था कि रीच करना है, यहाँ पे आप न्यू एडसेट में आए, तो यहाँ पे आप, जैसे मैंने बोला था फेसबुक ये जरूरी है, तो ये यहाँ पे मांगता है कौन सा पेज है, इसके विदाउट आगे आने जाने नहीं देगा, इसलिए यू नीड टू क्रिएट दिस पेज बिफोर, राइट। यहाँ पे आप बजट सेट कर सकते हैं कि मेरा बजट क्या है, डेली बजट क्या है, तो डेली बजट मेरा 200 रुपये है, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी है, उस हिसाब से फेसबुक यहाँ पे आपको दिखाएगा कितने लोगों को पोटेंशियली वो रीच कर सकता है इस बजट पे। फिर मैंने बोला था आप ज्योग्राफी पे टारगेटिंग कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं नहीं यार मुझे इंडिया नहीं, आई वांट टू ओनली टारगेट यू नो ओनली इन द मुंबई रीजन, राइट। सो आई विल से मुंबई, तो मुंबई, इफ आई टाइप मुंबई महाराष्ट्र ओनली टारगेट है, सो इट विल शो यू कि आप इन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, राइट। यू कैन ऑल्सो एक्सक्लूड, you can let's say instead of in the in this actually you can let's say Mumbai is not because Mumbai doesn't have foreigner, but let's say it was Maharashtra, so I'll just remove this and I'll say, right, I'll say India, I'll just include India, right. But let's say you want to exclude some, right? So you will say exclude, but let's say you want to exclude Mumbai for some reason, or you say Maharashtra for some reason, you want to say Maharashtra, I don't want to target, right? So it will actually show you here that it only targeting India, but Maharashtra is excluded in red. Or you can also say I don't want to target, for example, you can say for some reason you don't want to target Assam. So it will show you that Assam is also excluded. So it shows you here how do you, what to include and what exclude, and very clearly shows India is included, but these two states are excluded. And then after I said कि age भी आप target कर सकते हैं, right? तो आप बोल सकते हैं कि मुझे actually age 30 plus का ही करना है और 30 to 50 का करना है, तो आप यहाँ पे set कर सकते हैं age. You can set your age, and then you can also say gender. So I say okay, I don't just want to target women. And then I said कि interest based होता है, तो आप interest बोल सकते हैं यहाँ पे, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे योगा वालों को टारगेट करना है, so I want to target all women who do yoga, who fall in this age 30 to 65, who are live in India but not in Maharashtra and Assam. तो आपने ऐसे आपके कर दिए हैं। फिर आप लैंग्वेज टारगेट कर सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ हो सकता है आप बोलें कि तमिल लैंग्वेज मुझे टारगेट करना है, तो आप तमिल लैंग्वेज वालों को भी टारगेट कर सकते हैं। फिर आप ये प्लेसमेंट्स का है, आपको चाहिए, अब फेसबुक क्या है, अगर इफ यू फैमिली विद फेसबुक, it actually has lot of different places it shows ads, so you can say
either most of the time you would want it to be automatic placements. आप नहीं चाहेंगे कि आप बताएं कि इस जगह मत दिखाओ, इस जगह दिखाओ, पर आपको चाहिए तो मैनुअल कर सकते हैं आप, and you can manually select the placements of the. So मैनुअल में क्या रहता है, यू वैसे कि मुझे फीड में दिखाना है, इंस्टाग्राम में दिखाना है, बट मुझे फेसबुक मार्केट प्लेस वीडियोज ये सब में नहीं दिखाना है, तो आई जस्ट से आई डोंट वांट टू शो इट हियर, आई डोंट वांट टू शो इन दिस. So you can actually select कि कहाँ कहाँ में दिखाना है, स्टोरीज में दिखाना है, नहीं दिखाना मुझे, कल से मुझे स्टोरीज में. Right, so you can do all this. Usually people prefer कि you know कि आप ऑटोमेटिकली कर लें, बट अगर आपको करना है तो आप स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि यहाँ पे ऐड दिखाना है, यहाँ पे नहीं दिखाना. फिर अपन ने बोला था कि रीच है, तो ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे अपना है कि यू कैन you selected, you can also edit it here. There's nothing stops you कि आप रीच के लिए चाहिए कि इम्प्रेशन के लिए चाहिए. इम्प्रेशंस एंड रीच का डिफरेंस है. इम्प्रेशंस मतलब इम्प्रेशंस होता है कि वो फ्लैश कर रहा है ऐड को, राइट. तो हो सकता है वन पर्सन एक ही पर्सन को बार बार फ्लैश कर रहा है, तो आप इम्प्रेशंस पे या तो बोल सकते हैं कि मुझे इम्प्रेशंस पे करना है, या फिर आप रीच पे करना है कि नहीं मुझे एक्चुअली ऐसा नहीं चाहिए कि एक पर्सन को ही बार बार फ्लैश करो, मुझे चाहिए कि बहुत सारे लोगों को आप फ्लैश करो, चाहे एक बार ही करो तो फ्लैश करो. तो you will select reach there, and then you can decide ki how much you want to pay for the reach. I'll get into this later, but this is how you do the targeting in the ad set. Abhi apan ad set mein, we were in the ad set, and it shows you here potentially you will reach this, and daily you will reach these many. So we covered campaign, we covered ad set, and then we cover the ad. After that you will create the ad, right? And as I said कि ad में you basically think कि how कि ad क्या है, what is the ad looking like. तो यहाँ पे as I said कि Facebook पेज है आपका, फिर आपका आप यहाँ इंस्टाग्राम है तो आप इंस्टाग्राम का पेज भी यहाँ पे डाल सकते हैं, और फिर आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि आपको इमेज दिखानी है कि कैरोसेल दिखाने है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं. और फिर you can select, let's say I want to show carousel, not single image but carousel. carousel में आपको स्वाइप करने का ऑप्शन मिलेगा, या आप स्वाइप कर सकते हैं. तो आप carousel के कार्ड्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं एक एक करके. तो यहाँ पे carousel, यहाँ पे फेसबुक दिखाता भी है कि वो दिखेगा कैसे, राइट. यहाँ पे वो सारे फॉर्मेट्स का दिखाता है कि दिखेगा कैसे. तो इसलिए आप यहाँ पे फिर आपको जो डालना है कि ओके फ्लैट 50% ऑफ, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं हेडलाइन में, और आपका यूआरएल यहाँ डाल दीजिए. फिर आप चाहिए तो आप we will बेसिकली आप पिक्सल्स यहाँ पे, जैसे मैंने बोला था पिक्सल और ऐप का वो सेटअप करने का अपन बाद में देखेंगे. So this is basically is what the ad looks like, and in future in the third session we actually will create an ad, run it, and see how it looks like. So and we'll create different, आप carousel का भी ऐड करेंगे, वीडियो का भी बनाएंगे अपन, इमेज का भी बनाएंगे. We'll also create dynamic creative which actually only Facebook, आप कैटलॉग दोगे तो Facebook ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, तो वो भी अपन देखेंगे. So all these things are there. So this basically is what interaction of it. आपने देखा कि अब हमने पहले ये देखा कि बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड अकाउंट होता है, फिर कैंपेन होते हैं, एड सेट्स होते हैं, ऐड होता है. अभी आपको you would have understood it very well कि this structure and the one I showed, how does it relate. You would have also understood कि ad account, campaign, ad set और ad में difference क्या है, what does it look like and what is there.
and you would also, this is, we will understand it more once we go through lot more data around catalog and tracking. तो ये आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा. And we went through these three things which you can do right now to create a business manager account. So in the next sessions, basically we will create a Facebook app. जो आपका अगर आपका ऐप है, कोई मोबाइल ऐप है, तो उसमें आपको एक फेसबुक ऐप डालना पड़ता है ताकि आपकी ट्रैकिंग हो. तो वो अपन देखेंगे. उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं ऐप में, वो देखेंगे. फेसबुक पिक्सल को कैसे इंटीग्रेट करते हैं वेबसाइट पे, वो देखेंगे. फिर आपका प्रोडक्ट का कैटलॉग कैसे अपलोड करेंगे, लाइव. फिर आप विल क्रिएट फ्यू लाइव एड्स, विल क्रिएट ऑडियंसेस, अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, अंडरस्टैंड द फनल होता है, उसको कैसे अपन ऑप्टिमाइज करते हैं. And also how do you debug your ad issues. कोई ad का issue आ रहा है तो उसको debug कैसे करना है. So these will learn, and now basically if you need any help in FB ads, of course you can write to Brahman at Toss.ai. If you need any custom help in the Facebook ads. So this is it from my side. I hope you liked it. This is of course the first session, introductory session. 3 more sessions we'll do later, and hopefully you will become an expert in Facebook ads. After that we'll do Google ads and other type of marketing, so that you get a very holistic understanding of digital marketing. So thank you everyone. I hope you liked it. I'll give it now to Monica. Thank you everyone for attending this session. Thank you, Manoj. Today we have seen how to create Facebook ads and more on what all options are available for Facebook ads. In our next sessions, we will be actually understanding how do you track the efficiency of these Facebook ads. क्योंकि practically हम पैसा खर्च करेंगे ऐड में, लेकिन जब तक हमें पता नहीं हो कि इससे आया क्या है हमारे पास, जब तक हम उसकी एफिशिएंसी जानेंगे नहीं, तब तक हम ना ही उस पे और खर्च करना चाहेंगे, ना ही हमें आइडिया आएगा कि हमारे पास जो कस्टमर आ रहा है वो इससे ही आ रहा है या नहीं. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ट्रैकिंग करें कि ये सब एड्स का परफॉर्मेंस क्या है और हमारे पास एक्चुअली कैश इनफ्लो क्या हो रहा है जब ये आउटफ्लो होता है. तो इसलिए नेक्स्ट सेशन में we will learn how to track the performance and how to improve the efficiency of these ads. Hope to see you soon, and we will post the update on next sessions sometime next week. You can put your question and answers in Q&A or email us on brahman@plotch.ai. Thank you everyone. Yeah, you can ask any questions if you have right now. Otherwise, we will of course do the sessions later on. तो आप उस वक्त भी पूछ सकते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन हो तो. I think we'll wrap up here since there are no questions. Thank you again, and we'll see you in the next session now. Thank you.